स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में इंट्यूशन के अलावा बहुत सारे दूसरे एटीट्यूड, अप्रोचेस और ओपिनियन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस भी धीरे धीरे डेवलप हुए हैं जो आने वाले मैनेजर्स अपने पीछे के मैनेजर्स को देख करके या उनके साथ काम करके समय समय सीखते हैं। जैसे एक ट्रेडिशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में यह है कि रूटीन ढंग से काम करो, लेकिन जब कोई यूनिक प्रॉब्लम आ जाए तो यूनिक ढंग से सोचो, अदरवाइज लेट इट गो एज इट हैपेंस। जैसे पहले करते चले आए हैं वैसे आज भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं बेलिजरेंट अप्रोच। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जब विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, जिससे विशेष चुनौतियां सामने आ जाए, तो उन चुनौतियों को निपटने के लिए हमें भिन्न ढंग से या यूनिक ढंग से या स्पेशल ढंग से सोचने की आवश्यकता होती है। सोचने की आवश्यकता होती है अर्थात नियोजन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बदल लें। आमतौर पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यह कहता है कि हमेशा हमें बहुत ही स्पेशल ढंग से प्लान बनाना है। स्पेशल ढंग से प्लान बनाना है इन द सेंस कि जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर्स का रिएक्शन है या बिहेवियर है, जिस प्रकार से हमारे व्यापार की आवश्यकता में बदलाव आया है, चूंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में बदलाव आया है, जिस प्रकार से इन्वायरमेंट के और भी वेरिएबल्स में परिवर्तन आया है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें योजनाएं अपनी तय करनी चाहिए। लेकिन जब तक ठीक ढंग से गाड़ी चल रहा है, जो पहले एक बार 5 साल 10 साल पहले जो एक स्ट्रेटजी फार्मुलेट कर ली गई है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेट इट गो एज इट proceeds, and as far as it proceeds in a satisfactory manner, there is no need to rethink. And when there is a need to rethink, they start to design the plan in the backdrop of what is the challenges before them. This approach cannot be said to be good because the nature of the business environment is quite dynamic. Every day it is changing, and therefore the competitors who are attentive, the competitors who want definite results out of their efforts, the efforts of the organization, they are always on their toe to rethink, redesign, replan, and evaluate their strategy and control the overall process in such a manner that the vision and mission could be achieved in a very, very accurate manner. So, whatsoever pointedly strategic management says, we have also to keep in mind how in practice managers think about strategy and how strategy sails their boat despite all the odds. Then next approach is entrepreneurial approach. Who is entrepreneur? Entrepreneur is one who thinks an innovative manner, therefore wants the unique results out of his or her unique thinking. The unique thinking
our innovative behavior involves a lot of risk. Therefore, an entrepreneur is always eager to take risk. Entrepreneur is eager to take risk because he finds abnormal profit if he or she takes the risk. So the combination of innovation, risk, profitability, and hard work and different approach to achieve the combination of three leads one to entrepreneurial behavior. So if this behavior is guiding the entrepreneur or the manager, this can be said to be entrepreneurial approach to decision formulation. How entrepreneurial approach is different from the general strategic process or generic strategic formulation process. In fact, only three criterion of innovation, risk, and profit guide the entrepreneurial approach, whereas the strategic approach or the true process of strategy formulation involves many more things, particularly the vision, mission, and goals, and also whether the company has already decided to go in a stable manner, in a growth manner, or in decline manner. That we shall see a little later what these three manners of thinking: growth, stability, and decline method. So entrepreneurial approach is also one of the major practice towards the process of strategy formulation. Then inside out planning. Inside out planning means we do not intend more than whatsoever we have as input. So we are quite sure about what we are having, what we have as capital, what we have as total competences, and on the basis of what we have, only to that extent we plan about the outcome. यानी रिजल्ट्स की अपेक्षा हम उतना ही करते हैं जितनी की हमें प्रतीत होती है, हमारी कॉम्पिटेंसेस को ध्यान में रखते हुए, हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए, हमारे अन्य कैपेबिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इत्यादि को ध्यान में रखते हुए। जबकि वास्तव में केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमारा गोल क्या है, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, हमारा मिशन क्या है। यदि मिशन हमारा इस बात की आवश्यकता जताता है कि हमें यहाँ तक कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी चेंज करना चाहिए, तो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन का उचित प्रोसेस यह कहता है कि हम उस हद तक भी जाएं जो कि एक असंभव प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तक चेंज करना पड़े यदि विजन, मिशन और गोल की उपलब्धि के लिए यह जरूरी हो। नेक्स्ट, की फैक्टर अप्रोच। की फैक्टर अप्रोच प्रत्येक गोल, प्रत्येक प्रोसेस, प्रत्येक आउटकम के साथ कुछ की फैक्टर या एक या दो की फैक्टर जुड़े होते हैं। यानी की फैक्टर से तात्पर्य आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसे, वह तत्व जो हमारे निर्णय को सर्वाधिक प्रभावित करता है या अवश्यंभावी रूप से प्रभावित करता है, या उसी से बाकी सब कुछ डिसाइड होता है, या संपूर्ण प्रतिफल के निर्धारण में उसी तत्व का सर्वाधिक महत्व होता है। चारों बातें लगभग एक ही हैं, लेकिन एक लाइन में अगर इसे हम दोहराएं तो की फैक्टर वह फैक्टर है जिसकी भूमिका सर्वाधिक क्रिटिकल हमारे रिजल्ट्स को लेकर के होती है। क्रिटिकल मतलब सर्वाधिक डिटरमिनिंग। तो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में यदि हम केवल उसकी फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो दें या उसकी फैक्टर के आधार पर ही अपना स्ट्रेटजी निर्धारित करें, तो हम इस अप्रोच को
की फैक्टर अप्रोच कहेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो जो फैक्टर्स आवश्यक लगें, जो जो अप्रोच आवश्यक लगें, जो जो तरीका जरूरी लगे, उन सब का एक ऐसा मिक्सचर तैयार कर ले। जरूरी लगे हमारी तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में, जरूरी लगे हमारे मिड टर्म गोल को लेकर के। तो ऐसे सभी निर्णयों को हम एक में पिरो लें, यानी उनके लिए जो भी उपलब्ध टूल्स हैं या जो भी ऐसे अप्रोच अप्रोप्रिएट लगे, उनको जोड़ करके, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब हमें जैसा प्रतीत हो तो एक से अधिक फैक्टर्स को अपनी सुविधानुसार उपयोग करते हुए हम स्ट्रेटजी क्या होगा इसके बारे में निर्णय लें, तो हम इसे इंटीग्रेटेड अप्रोच कह सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फर्म की क्या प्रकृति है? प्रकृति से तात्पर्य मार्केट में या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के दृष्टिकोण से प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली संस्था वास्तव में कहाँ स्टैंड करती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ा है। किसी भी प्रोडक्ट का प्रारंभिक काल होता है, जबकि जिसको कि हम इन्फेंट पीरियड कहते हैं। एक शिशु, एक बच्चा, जिस प्रकार से अगर इंसान के जीवन को हम 100 साल के रूप में देखें तो पहला 10-12 साल वो बच्चा होता है, उसके बाद वह बड़ी तेजी से उसका ग्रोथ होता है, 18-19 साल तक वो युवा हो जाता है, और फिर 50 साल के बाद वो एक तरह से बूढ़ा होने लगता है, अर्थात उसका जो ओज है, ऊर्जा है, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी काम करने की क्षमता है, उसका परफॉर्मेंस है, इन सब में डिक्लाइन होने लगता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से हम 4 लाइफ साइकिल में डिवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट जब आता है, रेडियो कभी 1925-30 के ज़माने में जब उसका आविष्कार हुआ तो रेडियो या ग्रामोफोन, टेलीफोन जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिसका जन्म हुआ, शुरुआत में उसकी बड़ी मांग होती है, धीरे धीरे उसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और एक समय आता है कि उसकी मांग सर्वाधिक होती है या चरम पे होती है, और चरम पर पहुंचने के बाद तब तक कोई और प्रोडक्ट आ जाता है। रेडियो के बाद टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न के बाद मोबाइल आ गया, या मोबाइल के बाद ऐसे अनेक उपकरण आ गए जिनके माध्यम से हम टीवी, ओटीटी चैनल पर देखने लग गए, मोबाइल में देखने लग गए, या ऐसे तमाम नई नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पिछले प्रोडक्ट का मृत्यु हो जाता है और उसका स्थान नया प्रोडक्ट ले लेता है। तो कोई भी प्रोडक्ट किस स्टेज में है, प्रोडक्ट के अनुसार ही डिसाइड होता है कंपनी का स्ट्रेटजी। एक कंपनी के कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसको हम अलग अलग नज़रिए से अगर देखें तो हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के दृष्टिकोण से उसकी स्टैंडिंग भिन्न भिन्न होती है। कंपनियां इन सभी प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो के आधार पर, या यदि कोई कंपनी है कुछ ही एक दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है, तो इस आधार पर कि बाजार में उसकी क्या पोजीशन है, आने वाले समय में उसके प्रोडक्ट की बिक्री लाख प्रयास के बाद भी बढ़ेगी या नहीं बढ़, लाख प्रयास मतलब मैक्सिमम एफर्ट करके क्या रिजल्ट आएगा, क्या प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ सकती है। अगर तमाम उत्पादक बाजार में उत्पादन कर रहे हैं, जितना डिमांड है उससे दूना उत्पादन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आधे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो बाजार में नहीं बिकेंगे। इस तरह से हम जब यह पाए कि हमारा प्रोडक्ट वास्तव में आने वाले समय में हमारे प्रयासों से बाजार शेयर को और ज़्यादा कैप्चर कर सकेगा, मार्केट शेयर हमारा बढ़ने वाला है, हम
अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, तो हम ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जब यह प्रतीत होता है कि चाहे जितना भी हम प्रयास कर लें, बाजार में हमारे प्रोडक्ट का शेयर या बिक्री को हम नहीं बढ़ा सकते, या अगले 5 साल, 10 साल, 2 साल में वह स्थिर रहने वाली है, तो हम स्टेबल स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और जब हमें यह लगने लगता है कि चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हमारी बिक्री घटनी ही है, शनय शनय घटती ही जाएगी, तो यह डिक्लाइन पोजीशन कहलाता है। तो डिक्लाइन पोजीशन मतलब धीरे धीरे हमें क्विट करना है। एक बैग क्विट करेंगे बहुत नुकसान होगा, तो धीरे धीरे क्विट करें, जिससे कि अपनी तमाम संपत्तियों, अपने तमाम अन्य दूसरे जो हमारे उपयोगी प्लांट हैं, या जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे प्लान हैं, हमारे मिशन हैं, उन सबको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लें। उस अवधि के अनुसार धीरे धीरे हम अपना प्लान डिसाइड करते हैं। इसी के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या कैपिटल की प्राप्ति या री इन्वेस्टमेंट, फ्लाइंग बैक ऑफ कैपिटल, सब कुछ निर्धारित होता है। तो किसी भी संस्था के स्ट्रेटजी के निर्माण में यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि वास्तव में उस संस्था का पोजीशन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अनुसार कहाँ पर स्थित है। वह ग्रोइंग कंपनी है, या स्टेबल कंपनी है, या डिक्लाइनिंग कंपनी है। और यह तीनों फैक्टर उसके प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में पोजीशन पर निर्भर करती है। तो इस प्रक्रिया के अनुसार एक प्रबंधक या टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, जिनको कि हम पॉलिसी मेकर्स कहते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स जो स्ट्रेटजी फार्मुलेट करते हैं, वो जब स्ट्रेटजी फार्मुलेशन प्रोसेस में जाएंगे तो सबसे पहले वो यह देखेंगे कि हम वास्तव में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से हमारी कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, या डिक्लाइनिंग कंपनी है। और इस तथ्य के अनुसार ही अपने दूसरे अप्रोचेस को वो अपने स्ट्रेटजी फार्मुलेशन में इंटीग्रेट करते हैं। इस प्रकार कभी भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी फार्मुलेशन का सीधा सीधा यह तरीका है, सीधा सीधा यह प्रोसेस है, 1 2 3 4 और स्ट्रेटजी बन गया। ऐसा नहीं है। सबका 1 2 3 4 अलग अलग है। सबके 1 2 3 4 कहने में लगने वाला समय अलग अलग है, और सबके 1 2 3 4 के जो उतार चढ़ाव हैं वो अलग अलग हैं। इस प्रकार स्ट्रेटजी फार्मुलेशन, यद्यपि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने विजन, मिशन और गोल तय करते हैं। विजन, मिशन और गोल तय करने के बाद हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, हम इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। इन्वायरमेंट एनालिसिस के लिए हम स्वॉट एनालिसिस, टूज एनालिसिस, ईसॉप और सैप स्ट्रेटजिक एडवांटेज प्रोफाइल का भी सहारा लेते हैं। और इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट, हमारे लोकेशन, हमारा ट्रेडिशन, इन सब का क्या भूमिका हो सकती है स्ट्रेटजी फार्मुलेशन में, हम तय करते हुए हर संस्था अपने अपने ढंग से अपना स्ट्रेटजी फार्मुलेट करती है। तो यहाँ हम रुकते हैं। स्ट्रेटजी फार्मुलेशन पिछले 2 लेक्चर्स में हमने समाप्त किया। इसके आगे हम सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कल। आप चाहें तो सवाल लिख सकते हैं स्ट्रेटजी फार्मुलेशन पे, और प्रयास कर सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर देने में तुरंत आपको क्या दिक्कत आएगी। जो दिक्कत आएगी उसको किताब में आप पढ़ें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको पढ़ें। फिर से आप बैठ के उसका स्ट्रक्चर तैयार करें, उत्तर, और फिर उसके बाद आप लिखने बैठें यदि कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि अगर आप किताब पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप फिर से पढ़ें। इसके पश्चात जब आप लिखने लगें तो लिखते हुए यदि कहीं आपको ऐसा लगे कि किताब अगर देख लें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप किताब देख सकते हैं। किताब देखें और बेहतर से बेहतर
आप अपना नोट तैयार करें। यदि यही काम आप कंप्यूटर पे करें, डेस्कटॉप पे आप अगर टाइप करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कॉपी में तो आप बार बार लिखेंगे, काटेंगे, तो वो आपके लिए दिक्कत पैदा करता है। लेकिन डेस्कटॉप पे या सॉफ्ट कॉपी में जब आप टाइप करके अपने नोट्स बनाते हैं तो उसमें चाहे जितनी बार भी आप परिवर्तन करें, 2 साल बाद भी आप चाहेंगे उसको इम्प्रूव करना तो आप कर लेंगे। और साथ ही कंप्यूटर पे भी आपका हाथ ज़्यादा से ज़्यादा सेट होगा, जो भविष्य में आपको सभी क्रियाकलाप, चूंकि सब कंप्यूटर पे ही करना है, आपको लिखना वही है, अपने फाइल्स वहीं बनाने हैं, अपने नोट्स वहीं बनाने हैं, तो यह एक अच्छा अवसर है कि यहाँ से आप अभ्यास करना शुरू कर दें। क्या पता ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो स्थिति है, आने वाले समय में आपको कंप्यूटर पर टाइप करके एग्ज़ाम भी देना हो। तो फिलहाल आने वाले समय में कंप्यूटर पर टाइप करके एग्ज़ाम देना हो चाहे न देना हो, चूंकि पिछले 15-20 साल से आप लिखते आए हैं, उसमें तो आपको कोई असुविधा होगी नहीं, चाहे लिखना जब भी पड़े, जितना भी लिखना पड़े। लेकिन कंप्यूटर पे लिखना यह आपके लिए बिल्कुल नई विधा है, और आप यह भी जानते हैं कि भविष्य में यही विधा पूरी तरह से लागू होने वाली है। आप कहीं भी नौकरी करेंगे, किसी भी जॉब में जाएंगे, सभी जगहों पे हिसाब किताब, रिकॉर्ड्स और सब कुछ अब कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है। आप इन्वायरमेंट के हिसाब से पिछड़ न जाएं या पिछड़े न रहें, इसके लिए यह एक मौका है कि आप अपने उत्तर क्यों ना आप कंप्यूटर पे ही अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं। अब इसके बाद पूरे स्ट्रेटजी फार्मूलेशन पे आप यदि कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सवाल आप लिख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटजी फार्मूलेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटजी फार्मूलेशन? Why does the importance of strategy formulation differs from organization to organization? Why does the importance of strategy formulation differ from organization to organization? दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द challenges of strategy formulation process. जो भी इसको लिख ले वो ग्रुप ईमेल पे डाले तो बेहतर होगा। शब्द लिमिट 1000 words for every question. So knowing the number of words you have used on computer is much easy. By just use of 1-2 button you can know, or even in the word file, in the status bar below the page, you can always see the number of words that is contained in the file. So 1000 words for each question. Please write it and post it by Sunday on the group email. Thank you.